Hello class, welcome to this practical of design of mechanical drives. Today we'll be doing design of helical gears. Please make sure that you watch this video after you watch design of spur gears. So let me share my screen. Okay, I think it is visible to you now. So we have already talked about what are helical gears. So let us not discuss it in this class. That PPT is also available. I have uploaded it on Google Classroom, so you can go through it for the sake of revision, no problem. Now, one good thing about design of helical gears is the design process. 80% of the design process is exactly same. I'm not saying it matches. I'm saying it is exactly same to that of design of spur gears. So that's why in the beginning of the lecture I said that before watching this video of helical gears, you should, or it is suggested that you go through design process of spur gears. That video you should go through, right? So let us start with design of helical gears. For the sake of example, let us say that we have a problem statement like design a helical gear to transmit a smooth load of 30 kilowatt at 1440 rpm. So 30 kilowatt rated power है, 1440 rpm pinion का rpm है. The drive should be compact. The driven rpm required is 480. So gear आपका 480 rpm पे चलेगा. तो 1440 pinion का rpm 480 gear का rpm दिया है, तो यहाँ से आपका velocity ratio मिल जाएगा. Determine module and phase width of the gear. Assume suitable data. This is the problem statement that is there in front of you. So here again, like spur gears, you select tooth profile first. So as it is not given in the numerical, we always assume tooth profile as 20-degree full depth. Here, one more additional step is there. You also have to select the helix angle. See, spur gears is the teeth there are parallel to the axis, but in helix gear, helical gear, it is not the case. Helical gear में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? So here you have to select helix angle. So for trial basis, we can select helix angle as 18 degree. This is something you have to keep in mind. Helix angle of 18 degree, and that is our step number 1. Step number 2, like spur gears, is you have to find out number of teeth on pinion and gear as per table 16-7 and 16-11. Now, why 16-11? In 16-11, you first have to find out formative number of teeth. Now, what is formative number of teeth? I will discuss it when we do in whenever we study this topic in, or by the time you watch this video, we would already have covered this topic in class itself. So first, from table number 16-11, you have to find out formative number of teeth. Now here, serial number 3, you have formula for formative number of teeth on pinion. So in the place of T, you have to select TP and cos cube psi. Psi is helix angle 18 degree, right? So from here, you will get TF in some fraction. Like let us say you get the value of formative number of teeth at 16.34, for example. तो आप 16.34 तो फॉर्मेटिव नंबर ले नहीं सकते, तो आप उसको राउंड अप करोगे तो वो वैल्यू आपकी आती है 17. ठीक है? सो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन as per step number 2 and as per this formula from table number 16-11 आपका आया 17, right? Now again in step number 2 you have to find out velocity ratio, because velocity ratio direct दिया हुआ नहीं है, right? Driving RPM दिया हुआ है, driven RPM दिया हुआ है 1440 divided by 480. So as per this numerical that I specified at the start of this practical, अपना velocity ratio 3 आता है, right? और अगर velocity ratio 3 है और number of teeth on pinion 17 है, तो number of teeth on gear कितने आएंगे? 17 multiplied by 2. So that way you can find out number of teeth on gear in step number 2. In step number 3, like we did in spur gears, we have to find out pitch line velocity in terms of module. We do not know the module yet. We have to find out module. So pitch diameter again is number of teeth on pinion multiplied by module, right? Now we have two types of module in helical gears. See, like at the start of the practical, what I said, 80% of the step is same. जो 20% अलग है ना, वो ये है. स्पर गियर में आपका एक ही मॉड्यूल है, हेलिकल गियर में आपको दो मॉड्यूल है. एक है
टेंजेंशियल मॉड्यूल, दूसरा है नॉर्मल मॉड्यूल, राइट। सो डीपी जो हम लोग लेते हैं दैट हैज टू बी टेकन, जो आप एमटी आप जो ट्रांसवर्स मॉड्यूल, सॉरी नॉट टेंजेंशियल मॉड्यूल, ट्रांसवर्स मॉड्यूल, तो आप जो डीपी में फॉर्मूला लिखते हो उसमें आपको ट्रांसवर्स मॉड्यूल लिखना पड़ता है, बट वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसवर्स मॉड्यूल एंड नॉर्मल मॉड्यूल एज गिवन इन टेबल नंबर 16-11। तो नॉर्मल मॉड्यूल जो है वो एमटी इंटू कॉस साई, ठीक है। तो आप जब पिच लाइन वेलोसिटी डीपी वीपी, सॉरी पिच लाइन वेलोसिटी वीपी जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हो उसमें डीपी लगता है पाई डीपी एनपी। तो डीपी आप जब लोगे तब आपको उसको उसमें शुरुआत में एमटी लिखना है और वो एमटी की जगह पर आपको फिर mn डिवाइडेड बाय cos psi लिखना है। तो आपका डीपी का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय sorry number of teeth on pinion multiplied by mn divided by cos psi, right? There you can find out the value. After that you can find out value of vp as required in step number 3 as pi dp np, right? So here you will get the value of vp in terms of module mn, that is normal module। क्यों? क्योंकि dp को अपन ने mt से mn में कन्वर्ट किया। डीपी क्या लिया था अपन ने, मॉड्यूल सॉरी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मल्टीप्लाइड बाय mn, दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइडेड बाय cos psi। तो cos psi की वैल्यू तो आप लिख लोगे, जो भी आपका हेलिक्स एंगल आपने 80 डिग्री जैसे लिया हुआ है उसके हिसाब से। तो आपको जो vp मिलता है दैट यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल, राइट। इन स्टेप नंबर 4 यू फाइंड आउट डिजाइन पावर पीडी। डिजाइन पावर पीडी जो है वो आप 16-11 के हिसाब से फाइंड आउट करते हो और टेंजेंशियल टूथ लोड भी आप कैलकुलेट करते हो इन टर्म्स ऑफ mn इन स्टेप नंबर 4 itself, राइट। तो पीडी का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे क्या है, pr इंटू केएल इंटू केडब्ल्यू। फॉर्मूला सेम है, इसमें सिर्फ एक नई टर्म ऐड हुई है केडब्ल्यू। तो केएल अगेन अपन लोड फैक्टर टेबल नंबर 16-2 से निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग कंडीशन, मतलब स्टेडी लोड है क्या, कंटिन्यूअस है क्या, तो उसके हिसाब से केएल की वैल्यू मिल जाएगी जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। केडब्ल्यू जो है वो ल्यूब्रिकेशन एंड वियर फैक्टर है एज कैन बी सीन फ्रॉम द डेटा बुक, राइट। सो डेटा बुक में अपन चलते हैं टेबल नंबर 16-12 में। तो अगर कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन के बारे में अगर न्यूमेरिकल में कुछ बोला है तो हम लोग डायरेक्ट फैक्टर ले लेंगे, अगर नहीं बोला है तो यूजुअली वी गो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ केडब्ल्यू एज इन केस इट इज 1.15। तो यहाँ से अपने को पीडी मिल जाएगा। पीडी के बाद अपन लोग एफटी निकालते हैं। एफटी का फॉर्मूला है कि यहाँ पे एफटी का फॉर्मूला यहाँ पे टेबल में नहीं दिया हुआ है, तो एफटी का फॉर्मूला हम लोग वही लेंगे जो पर गियर में है, इट इज पीडी अपॉन वीपी। नाउ पीडी अपन लोग निकाल चुके हैं, अभी ये स्टेप नंबर 3 में इन टर्म पीआर इंटू केएल इंटू केडब्ल्यू करके, और वीपी जो है अपन ने स्टेप नंबर 3 में निकाल चुके हैं। तो अगेन वी विल गेट एफटी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल mn, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5। हियर वी सिलेक्ट मटेरियल फॉर पिनियन एंड गियर। कुछ भी बोला है क्या, स्टील लेना है, कास्ट आयरन लेना है, कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग वही लेंगे जो अपन ने स्पर गियर में एज्यूम किया था, SAE 3245, ठीक है। SAE 3245 किया कि उसकी एसओ की भी वैल्यू मिल जाती है अपने को। ये देखो यहाँ पे SAE 3245 एसओ की वैल्यू 456, तो ये दो वैल्यूज अपने को मिल गई। मटेरियल अपन ने फाइनलाइज कर लिया स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 6 में हम लोग FB निकालते हैं। FB इज बेंडिंग स्ट्रेंथ, राइट। तो FB का फॉर्मूला भी यहाँ पे SOCVBYM N ऐसा दिया हुआ है। MN क्या है, MN इज नॉर्मल मॉड्यूल। तो अपन ने स्पर गियर में डिस्कस कर चुके हैं, एसओ की वैल्यू अपने को मटेरियल सिलेक्ट करते बराबर मिल जाती है। सीवी की वैल्यू अपने को एज्यूम करनी पड़ती है। सीवी की वैल्यू जो अपन ने स्पर गियर में 0.3 एज्यूम किए थे, वो वैल्यू अपने को यहाँ पे 0.45 एज्यूम करनी है। ये चीज थोड़ा सा ऐसा है जो याद रखना है, ठीक है। तो सीवी की वैल्यू अपन ने स्पर गियर में 0.3 एज्यूम किए थे, यहाँ पे अपने को 0.45 एज्यूम करना है। y जो है मॉडिफाइड ल्यूइस फॉर्म फैक्टर, वो आपको पता है टेबल नंबर 16-5 के हिसाब से इसमें लिखा ही हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन यूज t इज इक्वल टू tf। आप 16-5 जब टेबल यूज ओपन करोगे तब आपको y निकालने के लिए, हाँ y निकालने के लिए t यूज करना पड़ता है एज पर टाइप ऑफ प्रोफाइल 20 डिग्री फुल डेप्थ अपन जो एज्यूम किया है। तो यहाँ के t की जगह पर tf यूज करना है, ठीक है। tf यानी फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ, जो अपन ने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया था। तो वहां से आपको FB मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ mn। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ mn स्क्वायर, सॉरी वहां से आपको ये मिल जाएगा FB इन टर्म्स ऑफ mn स्क्वायर। So now we have the value of FT in terms of mn, we have the value of FP in terms of mn square। यहाँ से आपको नॉर्मल मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप स्टेप नंबर 7 में बाय इक्वलाइजिंग FT एंड FB इन लिमिटिंग कंडीशन। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, FT is actual tooth load that is coming on the tooth actually, and FB is the strength of the tooth। तो लिमिटिंग कंडीशन में
मैक्सिमम कितना स्ट्रेस कैरी कर सकेगा, स्ट्रेंथ जितना, तो आप एफपी और एफबी को इक्वलाइज कर सकते हो, वहां से आपको नॉर्मल मॉड्यूल मिल जाएगा स्टेप नंबर 7 में। अगेन आपको नॉर्मल मॉड्यूल मिलने के बाद उसी आपको टेबल में जाके, नॉर्मल मॉड्यूल वाले टेबल में, लेट मी फाइंड द टेबल फॉर यू। हाँ, इन टेबल नंबर 16-7 यहाँ से अगेन आपको प्रिफर्ड वैल्यू ऑफ मॉड्यूल, नॉर्मल मॉड्यूल फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में you will be in a position to find out actual values of pitch circle diameter of pinion, pitch circle diameter of gear, that is dp and dg, then the value of ft and the value of cv like we did in spur gears, right? वहां से अगेन आपका cv का वैल्यू अलग मिलेगा, cv का वैल्यू हायर मिलता है तो वो हायर वैल्यू निकाल के आपको फिर से fb की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और स्टेप नंबर 9 में आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, इट इज अ डिजाइन चेक स्टेप। स्टेप नंबर 9 में आपको चेक करना है वेदर एफबी इज ग्रेटर देन एफटी और नॉट। इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन एफटी, इफ एफबी इज नॉट ग्रेटर देन एफटी, देखो स्ट्रेंथ हमेशा स्ट्रेस से ऊपर रहना चाहिए, तभी वो डिजाइन सेफ बोलेंगे अपन, बराबर है। बट इफ इट इज नॉट द केस, तो आपके पास एक चांस ये होता है कि आप मॉड्यूल की वैल्यू बढ़ा सकते हो। आपने सपोज आपका 3 पॉइंट समथिंग आया तो आपने 4 ले लिया मॉड्यूल, तो आप 4 की जगह पर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 5 प्रीफर्ड रेंज के हिसाब से, तो आप वो सिलेक्ट करके फिर से कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से क्या किया था अपन स्पर गियर में, हमने डायनामिक लोड निकाला था। डायनामिक लोड का इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है एफडी का, तो हम लोग चलते हैं टेबल नंबर 16-11 में। 16-11 में डायनामिक लोड का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे सीई भी कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर साई ऐड हुआ है और एंड में कॉस साई से अपन ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से आपको एफडी की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको एफडब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। एफडब्ल्यू की वैल्यू निकाल के आप अगेन ये सारे फैक्टर्स अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद आप FW और FD के बीच का रिलेशनशिप देखोगे, यहाँ पे आपका FW जो है वो FD से ऊपर आना चाहिए, दैट इज अगेन अ डिजाइन चेक इन स्टेप नंबर 10 में। आप क्या करते हो, स्टेप नंबर 10 में आप डायनामिक लोड निकालते हो और FW निकालते हो, FW इज वियर लोड। स्टेप नंबर 11 में आप क्या करते हो, स्टेप नंबर 11 में आप चेक करते हो वेदर FW इज ग्रेटर देन FD और नॉट, राइट। ये डिजाइन चेक भी फुलफिल हो गया स्टेप नंबर 11 में कि आप जाते हो स्टेप नंबर 12 पे, यहाँ पे आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालनी होती है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला यहाँ पे अवेलेबल है, इट इज ACB इंटू B इंटू Y इंटू MM, राइट। तो आप यहाँ से FEN निकाल लोगे और यहाँ पे और एक बार चेक करोगे वेदर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का वैल्यू एज जो अपन ने स्पर गियर में देखा हुआ है ऑलरेडी एक डिजाइन चेक, वो डिजाइन चेक के हिसाब से FEN दैट इज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ शुड बी greater than FT. This FEN should be greater than FT, right? And that concludes your design of helical gear, right? So whenever I will upload these videos, I will make sure that I upload this PPT also, this PDF also, which is on my right hand side. From here you can relate what I am talking with the design steps that are mentioned in the PDF, right? I have already uploaded this scanned copy of design data book on Google Classroom. I will also upload this design process of practicals on the Google Classroom. You can get it from there. I will also tell other faculty, Professor Smitish Bobade, to upload the same, so that students from other section also who are watching this video will be in a position to actually get both the files that are there currently on your screen. Fine. So with that, I conclude this design of helical gears. Thank you very much for your patient listening, and feel free to contact me or Smitish Bobade sir, as in case maybe if you encounter any difficulties while solving problems. Fine. So thank you very much. Thank you for patient listening. Goodbye.